السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا جو ویڈیو تھا جو احاطہ اور رقبے کا جو کہ انکمپلیٹ تھا، یہ اس کا کنٹینیو پارٹ 2 ہے۔ دیکھیے آلریڈی ہم یہاں پر کوشچن نمبر 2 تک ہے نا پچھلے ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ کون سی شکل ہے؟ یہ کون سی ہے؟ مزدس کی شکل ہے۔ مزدس کی شکل یعنی اس میں 6 ضلع کیا ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں۔ اور یہ کون سی شکل ہے؟ مربع کی شکل ہے۔ اور یہ ہے مستطیل کی شکل ہے جو کہ ہم لوگ اس سے واقف ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہ مساوی الاضلاع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے تمام ضلع مساوی نہیں ہیں، اس لیے مختلف ہے تینوں ضلع، تو یہ ایسا مثلث کیا کہلائیں گا؟ مختلف الاضلاع مثلث کہلائیں گا۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ تمام کا کیا کرنا ہے؟ احاطہ معلوم کرنا ہے۔ احاطہ کیسا معلوم کرتے ہیں؟ معلوم ہے نا، مطلب تمام ضلعوں کا مجموعہ۔ تو چاہے تو آپ دیکھیے تمام ضلعوں مطلب اس میں تمام ضلع مساوی رہتے، تو کیا کرتے اپن ایسی صورت میں؟ تو مزدس کے لیے کیا بتایا گیا تھا اپنے کو پچھلی مرتبہ؟ اگر 6 ضلع والی شکل ہے، اس کا احاطہ معلوم کرنا ہے، تو کیا کہا کہ 6 ضلع والی شکل کو جو بھی اس کا ضلع دیا جاتا اس سے 6 کو ضرب دے دیں گے تو آپ کو اس کا احاطہ معلوم ہو جاتا۔ اسی طرح مربع کے لیے، مربع کون سا ہے؟ 4 ضلع والا ہے، لہٰذا اس کے ضلع کو آپ 4 سے ضرب دے دیں گے تو اس کا احاطہ معلوم ہوتا۔ احاطہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ایک یہ سینٹی میٹر میں ہے نا، سی ایم مطلب سینٹی میٹر میں ہے، تب کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایک سمر تار پر کتنا؟ 15 روپے ہے، تو اس کا جو احاطہ آتا وہ احاطے سے اپنے کو 15 سے ضرب دے تو ہمیں بار لگانے کا خرچ معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے سوال نمبر 3 جو ہے۔ دیکھیے 24 سمر لمبے تار سے کتنے اقسام کے مستطیل بنائے جا سکتے ہیں جن کے اضلاع کے طول صحیح عدد ہو؟ اس طرح ممکنہ اضلاع کے طول معلوم کیجیے۔ صحیح عدد مطلب کیا؟ 1 2 3 4 5 یہ پورے صحیح عدد ہے۔ اگر 1/2 3/2 ایسے رہے تو یہ صحیح عدد میں نہیں آتے، وہ کس میں جاتے ہیں؟ ناطق عدد میں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ دیکھیے سوال نمبر 3 کو کس طرح حل کریں گے۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ 24 سمر کا کیا ہے؟ ایک تار ہے، اس سے کیا بنانا ہے اپنے کو؟ مستطیل بنانا ہے۔ تو یہاں پر ایک مستطیل بنائے تو 24 سمر ہے، ٹھیک ہے، 24 سمر تار سے مطلب یہ تار مطلب یہ احاطہ ہے، تو یہاں پر احاطہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ ہو گیا۔ یہاں پر دیکھیے 2 1 کم 2 2 1 کم 2 2 2 4، اب یہ کیا آیا؟ 12 آیا، یہ L + B، جیسے کہ ہم پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے 2 ابعاد ہے، اسی لیے مزید اس کو ہم 2 سے تقسیم کر دیں گے۔ 2 1 کم 2، یہاں پر 2 چھکے 12، تو یعنی کتنے مستطیل بنا سکتے اپن؟ 6 مستطیل بنا سکتے۔ کس سے؟ 24 احاطہ لے کر ہم 6 مستطیل بنا سکتے۔ کیسا بنا سکتے؟ اب یہ 12 کو آپ دیکھیے 6 بنتے کیا؟ یہ دیکھیے 1 11 لے سکتے نا، 1 11، ٹھیک ہے، 2 10، سوری کاما ہے، اوکے، 2 10، ٹھیک ہے، 3 یہاں پر 3 9، ٹھیک ہے، اور بولیے 4 8، اور کس طرح 12 کو ڈیوائڈ کرتے؟ 5 7، اور بولیے 6 ہو گیا۔ اب مزید اور کر سکتے کیا؟ اس کے ٹکڑے کر سکتے کیا؟ 12 کے کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو 1 2 3 4 5 6 مستطیل بنا سکتے اگر احاطہ اپنے کو 24 دیا گیا تو، اسی لیے اس کو میں پہلے بھی بولے تھے، ٹھیک ہے، 2 1 کم 2 2 1 کم 2، مطلب یہ 2 سے کیوں اس کو تقسیم کر رہے بولے تو یہ فارمولے میں آلریڈی اپنے پاس 2 ہے نا، اس سے اس کو تقسیم کر رہے، تو یہاں پر 12 آ گیا۔ 12 کیا ہے؟ یہ طول اور عرض کا مجموعہ ہے۔ تو یہاں پر کس طرح سے مجموعہ بنا؟ 1 یا 11 بن سکتا، 2 یا 10 بن سکتا، 3 یا 9 بن سکتا۔ تو اس کے لیے کیا تھا شارٹ فارم؟ اپنے پاس شارٹ کٹ کیا تھا؟ اس کو مزید 2 سے تقسیم کر دیں گے کیونکہ 2 ابعاد ہے، تو جو آنسر آتا وہی اپنے اتنے مستطیل اپن بنا سکتے۔ یہ آپ کا سوال نمبر 3 حل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے 4، دیکھیے ایک مربعی کیا ہے یہاں پر؟ ایک مربع پھولوں کی کیاریاں جس کا ضلع 3.5 میٹر ہے، جس کے ہر ایک ضلع کے اطراف 4 صفوں کے تار کی باڑ لگائی گئی ہے، درکار تار کی قیمت معلوم کیجیے جبکہ فی میٹر 15 روپے خرچ ہے۔ تو پہلے تو دیکھیے، پہلے اس کا احاطہ جو پھول کی کیاری ہے، یہ پھول کی کیاری ہے جو کیسی ہے؟ مربعی شکل کی ہے، اس کا ضلع کتنا ہے؟ 3.5 ضلع ہے، تو اس کا احاطہ معلوم کریے، تو اس کو 4 سے ضرب دے دیجئے،
35 दूनी 70 हो जाते, 70 दूनी कितने हो जाते, 140 हो जाते। अशारिया एक मुकाम के बाद है, यहाँ पर हटा दिए, क्या होगा यहाँ पर 14 हो गया। तो अहाता क्या होगा यहाँ पर 14 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, देखिए ये बात पे और रखिए कि हर एक ज़िले के अतराफ 4 सफ़ों के तार बांध लगाए गए, मतलब 4 मरतबा लगाइए, ठीक है, 4 मरतबा लगाएंगे। तो इसको और मज़ीद 4 से इसको ज़रब दे देंगे, 4 चौक 16, 4 एक कम 4 और एक 5, कितने हो गए यहाँ टोटल 56 मीटर हो गए। तो यहाँ पर एक के लिए 15 रुपये है, तो 56 के लिए कितने होते, फिर वही 15 छिक्के 90, फिर 9, 15 पंजे 75, 75 में 9 मिलाइए 80 और एक 84, कितने रुपये होते यहाँ पर 840 रुपये हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, एक 60 समर का तार है, हर ज़िले का तूल क्या होगा जब इस तार से मंदरजा झैल के अशकाल बनाए गए। अब यहाँ पे बनाना है 60 का लेके क्या बनाना है, मसाविल अज़ला मुसल्लिस बनाना है। मसाविल अज़ला मुसल्लिस ऑलरेडी अपन जब से बोलते आ रहे, तो ऐसा मुसल्लिस जिसके तीनों ज़िले मसावी रहना, मतलब इसका अहाते का ज़ाब्ता क्या है भाई 4A है, सॉरी 3A है। 3A कितना दिया यहाँ पर 60 दिया, तो A मालूम करना है। ज़ाहिर सी बात है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सिफर का सिफर, A क्या है इसका यहाँ पर 20 है, एक ज़िला 20 होगा। ये तो फर्स्ट शक्ल का आपको मालूम है। सेकंड शक्ल देखिए मुरब्बा, मुरब्बा भी अपने को मालूम है उसका क्या है भाई 4A होता, 4A कितना दिया 60 दिया। अब A क्या आता देखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 इधर चले गए, 4 पंजे 20, कितना होगा A क्या है यहाँ पर 15 हो गया। ये देखिए इसका होगा। नेक्स्ट देखिए, एक मुनज़्ज़म मज़दस की मालूम करना है। मुनज़्ज़म मज़दस यानी यहाँ पे कितना, मज़दस मतलब 6 ज़िले, कितना दिया यहाँ पर उसने 60 दिया। देखिए 6 कम 6, 6 कम 6, सिफर का छिपर, ए मसावी कितना होगा यहाँ पर 10 होगा, ये आपका। फिर यहाँ पर फोर्थ तो देखिए उसमें एक मुनज़्ज़म मखमस, मखमस किसे बोलते हैं 5 ज़िले वाली को बोलते हैं, मतलब 5A। ए मतलब मैं ये ए क्यों ले रहे बोल, तो ए से मुराद ज़िला, ठीक है ना। तो ए 5 इंटू कितना है, सॉरी 5A इज इक्वल टू 60 दिया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इधर चलेगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे इसका क्या आया 12, ठीक है ना। देखिए मसाविल अज़ला का ज़िला कितना आया अपने को 20 आया, ठीक है, और मुरब्बे का ज़िला अपने को 15 आया, और मज़दस का ज़िला अपने को 10 आया, और मखमस का ज़िला अपने को 12 आया, ठीक है। ये सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल अच्छे से गौर से देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, एक मर्तबा जस्ट जूम कर लेते मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए अमरीन और नाजनीन रोज़ाना दौड़ पर जाते हैं, यानी वाक पर जाते हैं। अमरीन मुरब्बे चमन के अतराफ़ जिसका ज़िला 80 मीटर है, ठीक है। अब जो उन लोग ना चमन मतलब क्या है, एक पार्क के अतराफ़, एक बाग के अतराफ़ ये कर रहे, तो ये जो अमरीन है, ठीक है, ये अमरीन है, इन्हों जो चक्कर लगा रहे किसके अतराफ़ लगा रहे, एक मुरब्बे के अतराफ़, मुरब्बे चमन है उसके अतराफ़ लगा रहे, जिसका ज़िला कितना है भाई 80 मीटर है, ठीक है, 80 मीटर है। उसी तरह जो नाजनीन मुस्ततीली चमन के, अब नाजनीन क्या कर रहे हैं, मुस्ततीली चमन है, उनको जो जिसके अतराफ़ लगा रहे हैं वो मुस्ततीली चमन के अतराफ़ है, जिसमें तूल क्या है, देखिए ये तूल जो है 90 है, 90 मीटर है, ओके। और जो अर्ज़ है यानी ब्रेथ कितना है इसका, ब्रेथ 60 मीटर है, ठीक है। तो अगर दोनों 3 चक्कर काटते, इन्हों भी 3 मरतबा दौड़ लगा रहे, इन्हों भी 3 मरतबा दौड़ लगाते हैं, तब बताइए कि दोनों में किसने ज़्यादा फासला तय किया, किसने ज़्यादा फासला तय किया। तो सबसे पहले अपने को अहाता मालूम करना होगा। मुरब्बे का अहाता किस तरह मालूम करेंगे, 4 इंटू A, मतलब A क्या है यहाँ पर 80 है, यहाँ पर आपको मालूम है 4 अट्ठे
32, ये सिफर का सिफर। तो एक ट्रिप में इन्हों कितना फासला तय कर रहे, 332 मीटर जा रहे। तो उन्होंने लगाए कितने भाई चक्कर, 3 चक्कर लगाए। तो 3 से इसको ज़रब दे दीजिए, 3 सिफर सिफर, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब टोटल कितने मीटर उन्होंने 960 मीटर करे क्या दौड़ लगाए। कौन, अमरीन। अब देखेंगे यहाँ पे नाजनीन का, ठीक है। अब नाजनीन देखिए, नाजनीन का कौन सी शक्ल है भाई, मुस्ततिल है। मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता क्या है अपने को मालूम है, 2 × L + B। ये 2 एज इट इज़ लिख लिए। L क्या है यहाँ पर 90 है, B क्या है यहाँ पर 60 है। दोनों को ऐड कीजिए 150 हो गया। 152 सा कितना होगा यहाँ पर 300 हो गया ना। अब ये एक मर्तबा में है तो इन्हों भी कितने चक्कर लगा रहे, 3 चक्कर लगा रहे। तो यहाँ पे 3 से इसको ज़रब दे दीजिए, 3 तिया 9, ये 2 सिफर के सिफर। तो टोटल इन्हों कितने मीटर दौड़ लगाए, देखिए इन्हों नाजनीन जो है 900 मीटर दौड़ लगाए और अमरीन जो है 960 मीटर दौड़ लगाए। तो सब ज़्यादा फासला किसने तय किया, तो जाहिर सी बात है किसने तय किया भाई, यहाँ पर अमरीन ने ज़्यादा फासला तय किया। ये आपका जवाब होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पर एकदम क्या है पूरा करके क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अपने को शॉर्टकट में हटा देना है। नहीं अमरीन ने इतना किया फिर इसने इतना किया, अगर वो टोटल करते बैठे तो अपन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहे आपको। वरना क्या है, अगर स्कूल लेवल का अगर हम देखेंगे तो मज़ीद उसको जुमलों में लिखते हुए बहुत ज़्यादा वक्त होगा, ठीक है ना। वैसे तो आपको बेसिक तमाम बातें मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, एक मुस्ततील का तूल इसके अर्ज़ का दुगना है। ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी आते, देखो ऐसे क्वेश्चन आते रहते एग्जाम में, ठीक है। एक मुस्ततील का तूल उसके अर्ज़ का दुगना है, तो अर्ज़ नहीं मालूम है लेकिन तूल क्या है, उसके अर्ज़ का दुगना है। तो ऐसी सूरत में क्या करते अपन, फ़र्ज़ करते। क्या फ़र्ज़ करते भाई ऐसी सूरत में, एक मुस्ततील का तूल उसके अर्ज़ का दुगना है। तो ये अर्ज़ को क्या ले लेते अपन, अर्ज़ को x माने। तो यहाँ पे क्या हो रहा, तूल क्या हो रहा, उसके अर्ज़ का दुगना है मतलब 2x, दुगना मतलब 2x, दुगना मतलब 2x हो जाता, 2 ज़्यादा है मतलब x + 2 होता, ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट, अगर इसका अहाता 48 समर हो तो इसके बाद मालूम कीजिए। अहाता कितना है इसका, मतलब टोटल अहाता क्या है इसका 48 है। अब यही ज़ाब्ते में लिख लीजिए, अहाता कितना है 48 है, = 2 का 2 ले लीजिए। L क्या है यहाँ पर, L क्या है यहाँ पर 2x है, प्लस B क्या है x है, ठीक है। इनको तकसीम कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, क्या बन गया ये 24 होगा। अब यहाँ पर देखिए x और 2x कितने हो गए, 3x हो गए। यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 8 24 हो गए, ठीक है। मतलब x मसावी है 8 आया, मतलब अर्ज़ कितना है, ये अर्ज़ है, 8 क्या है अर्ज़ है। तो यहाँ पे तूल क्या बोला था, वो उससे दुगना बोला था, तूल क्या बोला था, अर्ज़ से दुगना, मतलब 8 दूनी 16, ठीक है। ये उसके बाद है 8 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पर एक मुसल्लिस के 2 अज़ला 12 समर और 14 समर है, उसका अहाता जो है 36 समर हो तो तीसरे ज़िले का तूल क्या होगा, तीसरे ज़िले का तूल क्या होगा। तो अपने को मालूम है जो मुसल्लिस का अहाता होता है तीनों ज़िलों का मजमुआ होता है। तो ये मुसल्लिस, ठीक है, ये मुसल्लिस का अहाता क्या होता, तीनों ज़िलों का मजमुआ होता है, A + B + C, तीनों का मजमुआ क्या होता, अहाता होता। तो यहाँ पे क्या दे दिया, अहाता दे दिया, वो 36 दे दिया, उसमें से 2 ज़िलों का भी तूल दिया। क्या दिया भाई, एक का 12 दिया, एक का 14 दिया। अब ये तीसरा नहीं दिया, मालूम करना है। तो इसको कैसा करेंगे आप, ये 36 जैसा है वैसा लिख लीजिए। ये कितने हो गए, देखिए 26 हो गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 26 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता है यहाँ पर 10। तो तीसरा ज़िला क्या है भाई, यहाँ पर अपना 10 समर है, ठीक है ना, 10 समर है, ठीक है। तीसरा ज़िला कितना है, 10 समर है। अब ये कैसे आया आप लोग देख लेना भाई, ये 26 इधर आके माइनस हो रहा, 36 में से 26 गए तो कितने हो गए, 10 समर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन,
सॉरी 8वां हो चुका है। 9वां देख लीजिए। मंदरजा झेल अशकाल के अजला दिए गए हैं, इनके अहाते मालूम कीजिए। यहाँ पे देखो अजला दे दिए, पहला है मुसल्लिस, इसके अजला दे दिए, देखो इसका अहाता मालूम। आप यहाँ देखते ही बोलते भाई अहाता मतलब मजमुआ होता, देखो 3 4 कितने हो गए, 7 7 5 कितने हो गए 12, आप देखते ही बोल देते हैं इसका अहाता 12 है। यहाँ पर देखिए एक मसाविल अजला मुसल्लिस जिसका ज़िला 9 है, तो जाहिर सी बात है मसाविल अजला है मतलब तीनों भी मसावी रहते, मतलब तीनों भी 9 9 के, तो 9 तिया 27, ठीक है। आप देखते ही इसका आंसर बोल देना। नेक्स्ट देखो, एक मसावी साखैन मुसल्लिस के मसावी ज़िले 8 तूल है और तीसरा ज़िला 6 है। अब यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ पर अब तक मसाविल अजला मालूम हो गया था ना। मसावी साखैन किसे कहते बोले तो मसावी साखैन मुसल्लिस बोले तो जिसके 2 ज़िले क्या रहते, मसावी रहते, तीसरा ज़िला जो रहता ना ये होंदो या कोसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे में भी रहा तो, ऐसे में अगर ख़ाइमुज़ ज़ाविया भी रहा तो ये ज़िला मसावी है तो ये ज़िला नहीं रहता, अगर ऐसे में भी रहा तो ये ज़िला नहीं रहता। मतलब ऐसा मुसल्लिस जिसके 2 ज़िले मसावी होते हैं, तीसरा ज़िला मसावी नहीं होता, उसको बोलते हैं मसावी साखैन मुसल्लिस, ठीक है। मसावियुस साखैन, ठीक है। साखैन के मतलब 2 ज़िले मसावी रह रहे ना इसमें, इसलिए ठीक है मसावी साखैन मुसल्लिस है। तो यहाँ पर सवाल में मसावी साखैन मुसल्लिस दिया जिसमें क्या कहा, मसावी ज़िले 8 है, मतलब ये 8 है, ये 8 है मसावी ज़िले, और गैर मसावी और तीसरा ज़िला 6 है, और ये जो है 6 है। अब इनका तीनों का टोटल बोल दीजिए, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22, तो क्या होगा इसका अहाता 22 हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मसावी साखैन मुसल्लिस है जिसके मसावी ज़िले क्या है, 8 है, मतलब 2 मसावी ज़िले के 2 भी क्या है 8 के, तीसरा क्या है 6 का है। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है 8 दूनी 16 हो गए, 16 और 6 कितने हो गए 22 हो गए, ये अपना जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ तक अब तक क्या देखे भाई अपन, अहाते के ताल्लुक़ से देखे, ठीक है। मश्क नंबर 1 भी जो था आपका अहाते के ताल्लुक़ से था। अब आ गया भाई रकबा। ऑलरेडी पिछले वीडियो में अपन बहस कर चुके हैं कि रकबा क्या है, अहाता क्या है, शॉर्ट वीडियो वगैरह में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब फिर भी एक नज़र देखेंगे क्योंकि हमें ये लेसन को पूरा टच करना है ताकि आप लोग को दोबारा क्या है किताब लेने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ देखिए झेल में दिए गए बंद अशकाल को और से देखना। यहाँ पे देखिए बंद शक्लें दिखाई दे रही है, तो आप है ना ये भी दायरा है, ये भी दायरा है, दोनों में क्या फ़र्क है, एक छोटा है एक बड़ा है बोलते आप, है ना। मतलब ये कम रकबा घेर रहा, ये ज़्यादा रकबा घेर रहा, यहाँ पर भी ये ज़्यादा कम रकबा घेर रहा है, ये ज़्यादा। तो रकबा किसे बोलते बोले तो जो खिता घेरता, मतलब ये जो खिता घेरा हुआ रहता, ठीक है, वो क्या है रकबा कहलाता है। यहाँ पे तारीफ़ है देखिए, एक बंद शक्ल से घेरे हुए खित्ते की मकदार को रकबा कहते हैं। एक बंद शक्ल से घिरे हुए खित्ते मतलब खित्ता है, ठीक है, मतलब एक जगह अंदर की, ठीक है, अंदर का जो भी स्पेस है वो, ठीक है, खित्ते की मकदार को रकबा कहते हैं, एरिया, ओके। मंदरजा बाला अशकाल को जोड़कर हम कह सकते हैं कि अगर रकबा ज़्यादा है, लेकिन क्या हमेशा मुमकिन हो सकता। अब यहाँ पर देखिए ये 2 शक्ल को देख के हम आसानी से बोल रहे भाई कि इसका रकबा ज़्यादा है, इसका रकबा कम है, इसका रकबा कम है, इसका रकबा ज़्यादा है। तो ऐसा क्या हमेशा हम बोल सकते क्या एक देखते ही किसका रकबा ज़्यादा है किसका रकबा कम है? तो बाज़ अशकाल ऐसे रहते हैं हम नहीं बोल सकते कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो वैसे अशकाल को उनका मुरब्बा मालूम करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसको ग्राफ पेपर, कौन सा पेपर, ग्राफ पेपर की मदद से मालूम करते। ग्राफ पेपर तो मालूम है ना, देखिए जो बॉक्सेस होते हैं ना, तो वो शक्ल को क्या करते अपन बॉक्सेस के ऊपर ड्रा करते। तो इसने ये जितने मुरब्बे ये अपने अंदर समा सकता, ठीक है, जो ज़्यादा मुरब्बे अपने अंदर समाएगा वही ज़्यादा रकबा, उसका ही ज़्यादा रकबा कहलाएगा। और यहाँ पर क्या मानते, जो आधे से ज़्यादा रहते ना उसको एक माना जाता है, और जो आधे से कम होता है ना, ठीक है, उसको है ना आधा माना जाता है, और जो बहुत ही कम है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है।
تو یہاں پر دیکھو گراف پر کھینچی گئی شکل میں کل کتنے مربع مکمل، مطلب یہاں پر مکمل مربع کتنے ہیں، آدھے کتنے ہیں، آدھے سے کم کتنے ہیں، آدھے سے زیادہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورے یہاں پر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رقبہ دراصل کل مربعوں کا مجموعہ، رقبہ مطلب کل مربع، اس کے اندر جتنے بھی مربع رہیں گے وہ اس کا مجموعہ رقبہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے، کچھ اس میں خاص نہیں ہے، پھر بھی میں بول دے رہی ہوں۔ تو یہاں پہ چند آدھے سے زائد، چند آدھے سے کم رہتا ہے۔ ایسے گرافی مربع جو آدھے سے کم گھرے ہو انہیں نظر انداز، ٹھیک ہے، جو آدھے سے کم رہتے نا ان کو نظر انداز کر دینا ہے۔ اگر آدھے سے زیادہ ہو تو ان کو ایک ماننا ہے، اگر حقیقتاً میں آدھا ہی ہو تو اس کو آدھا ہی لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مکمل مربع کو ایک مکمل مربع ہی ماننا ہے، ایک ہے تو ایک ہی مانیے بھائی، اگر آدھے سے زیادہ ہے تو ایک مانیے، آدھا ہے تو آدھا، آدھے سے کم ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، نظر انداز کر دینا ہے۔ اگر یہ ایک ثمر والا مربع ہو تو اس کا رقبہ بھی ایک ثمر ہوگا۔ ان تمام مکمل اور آدھے سے زائد آدھے والے گرافی مربعوں کو جمع کرنا اور دی گئی، مطلب ان تمام مربعوں کو جمع کر کے اپن دی گئی شکل میں کیا رقبہ ہے بتا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تخمینہ مطلب کیا ہے، تخمینہ کسے کہتے ہیں، اندازہ لگا دے، تخمینہ مطلب کیا ہے، یہاں پر اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مربعوں کی تعداد، تو جو مربع تھے وہ کیا ہے 11 آئے تھے، تو تخمینہ لگائے کہ یہ 11 ہے، 11 رقبہ ہوں گا، اور آدھے گھرے ہوئے مربع 2 تھے تو اس کو کیا کریں یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پر اسی کی تعداد ہے کہ کتنے آدھے سے کم کتنے تھے، آدھے سے زیادہ کتنے تھے، آدھے گھرے ہوئے کتنے تھے، آدھے گھرے ہوئے 2 تھے، مطلب یہاں پر 1 ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ آدھے سے زیادہ گھرے ہوئے مربع 8 تھے تو اس کو 8 پکڑ رہے کیونکہ وہ زیادہ ہے نا اس لیے 8، اور آدھے سے کم ہے تو اس کو نظر انداز کر دے رہے نا تو اس کو 0، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آدھے کو آدھے ہی پکڑ رہے۔ اس طرح منحنی اشکال کا تقابل ان سے گھرے ہوئے مربعوں کی تعداد کو لے کر کیا جاتا۔ اب یہاں پر ایک اچھے سے بات یاد رکھ لیجئے، یہاں پر دیکھیے یہ مستطیل ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کا ایک شکل ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کس سے بن رہا، یہ کس سے بن رہی ہے شکل، خطی خطوں سے بن رہی، ٹھیک ہے، یہ خطی خطے ہیں نا بھائی، یہ ٹھیک ہے، یہ لائن سیگمنٹ ہے نا یہاں پر، ٹھیک ہے، خطی خطوں سے بن رہی ہے شکلیں جو بھی اپن دیکھ رہے، یہ ہونے دیجئے، یہ شکلیں کیا ہے، خطی خطوں سے بن رہی۔ لیکن اب پچھلے جب ہم دیکھیں یہ والی شکل، یہ شکل میں خطی خطے ہے کیا، نہیں ہے، پھر کیا ہے، یہ منحنی سے بن رہی، کس سے بن رہی ہے، منحنی ہے، منحنی معلوم ہے نا آپ کو، یہ منحنی کرو کسے بولتے معلوم ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کرو ہے، خطی خطہ مطلب اسٹریٹ لائن رہتی، اور یہ کرو سے بن رہا ہے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ تمام کو جمع کرے تو ٹوٹل رقبہ معلوم ہو جاتا، خیر جانے دیجیے گا۔ یہاں پہ دیکھیے نیچے شکلیں ہے، اس کو مربعوں کی تعداد معلوم کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھو ایک مربع ہے تو یہاں پہ کتنے مربع گھیر رہا ہے، 1 2 3، 1 2 3، 3 تیا 9، تو پورے کتنے ہو گئے 9۔ یہاں پر دیکھیے یہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، 4 5 6 7، یہ 7 مربع گھیر رہا، مطلب اس کا رقبہ 7 اکائیاں۔ یہاں پر دیکھیے یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 یہ 6 یہ 7، ٹھیک ہے۔ اب یہ آدھے سے کم ہے تو نظر انداز کر دے رہے نا، یہ آدھا ہے تو اس کو 1 پکڑ لے رہے، یہ 8 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1 9، تو یہ بھی کتنا ہے 9۔ یہاں پر دیکھیے یہ 8 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے دیکھ کے اب یہاں پہ اس کو کیسا کاؤنٹ کرنا، سیم اسی طرح جو مکمل ہے اس کو 1 پکڑنا، جو آدھے سے زیادہ ہے اس کو بھی 1 پکڑنا، جو آدھا ہے اس کو آدھا پکڑنا، اور جو آدھے سے کم ہے اس کو نظر انداز کر دینا۔ خیر ایگزام میں نہیں آتے، جسٹ اپنے نالج کے لیے ہے یہ، اوکے۔ یہاں پر بھی مستطیل کا اور مثلث کا، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ آ جائیں گے یہاں پر، وہی یہ دیکھیے اگر ہم بچوں کو پڑھا رہے تو یہاں پر یہ ایکٹیویٹی دینا تاکہ ان لوگوں کا ذہن کیا ہے، کیا بولتے، ان کا ذہن ہے نا اچھی طرح سے کام کر سکے، تو کیونکہ وہ لوگ دلچسپی نہیں بتاتے نا میتھمیٹکس میں، جب ایسے تھوڑے آتے نا جو ایکٹیویٹیز تو یہ خاص کر دینا تاکہ ان کے اندر کیا ہے، میتھس کے تحت جو بھی کیا ہے، جو بھی کیا کہیں گے، جو بھی سست پن ہے، جو کاہلی ہے وہ دور ہو سکے۔ تو یہاں پہ دیکھیں پتوں کے اشکال، پھولوں کی پتیاں، مطلب یہاں پہ یہ بچوں کو دینا، دیکھو پتوں کے اشکال، پھولوں کی پتیاں یہ رکھ کے گراف پیپر پہ اتار کے اس کا رقبہ معلوم کرو بول کے ایکٹیویٹی دے سکتے اپن۔ اب آ جائیں گے مستطیل کا رقبہ۔
تو دیکھیے مستطیل کا رقبہ یہاں پر ایک ترسیمی کاغذ ہے، مستطیل کا رقبہ معلوم کرنا ہے جس کا طول 7 سمر ہے، عرض کیا ہے 4 سمر ہے، تو اس کو ترسیمی کاغذ پر معلوم کرنا ہے۔ تو یہاں پر جانے دیجیے، یہاں دیکھیے ہر صف میں 7 مربع ہے اور اس طرح 4 صف ہے۔ 7 مربع 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 یہاں پہ نہیں دیا وہ، ٹھیک ہے وہ شکل، تو ہر کیا ہے صف میں، مطلب یہاں پر اس طرح سے صفحے ہیں، کتنی صفحے ہیں یہاں پر 4 صفحے ہیں، اور ہر صف میں کیا ہے 7 مربع ہے، مطلب ایسے میں 7 ہے، ایسے میں کتنے ہیں 7 ہے، 1 2 3 4 5 6 7 ایسے میں 7 ہے، ایسے میں 4 ہے، تو یہاں پہ ٹوٹل مربع کتنے ہیں، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایسے میں 4 ہے، ایسے میں 7 ہے، تو اس کو دونوں کو ضرب دے دیں گے تو 7 چوک 28 کتنے ہو جاتے 28۔ یہاں مستطیل کا رقبہ 28، طول جو ہے 7 ہے اور عرض 4 ہے۔ حسب ذیل پیمائش کے مستطیل گراف پیپرز اتاریے اور ان سے گھرے ہوئے خطے کا رقبہ معلوم کیجیے اور طول اور عرض کا حاصل ضرب معلوم کیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ کتنے گھیرا ہوا ہے، دیکھیے ایسے میں کتنے ہیں 1 2 3 4 ہے، یہ 4 ہو گیا، ایسے میں دیکھیے 1 2 3 ہو گیا، مطلب 4 تیا مطلب طول ضرب عرض، مستطیل کا رقبہ کیا ہے طول ضرب عرض، تو دونوں کا کیا ہے ضرب دے دیں گے تو 3 چوک 12۔ نیکسٹ اس کو دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 ایسے میں 7 ہے، ٹھیک ہے، ایسے میں دیکھیے 1 2 3 4 5 ایسے میں کیا ہے 5، مطلب عرض 5 ہے، طول کیا ہے 7 ہے، دونوں کو ضرب دے دیجیے، طول ضرب عرض 7 پنجے 35، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ یہ دیکھیے یہاں پر 1 2 3 4 5 ایسے میں 5 ہے، ایسے میں 3 ہے، 5 تیا 15، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے طول 3، یہاں کا طول نہیں آنا، یہاں پر طول نہیں کہیں گے، یہ یہاں پر 4 رہیں گا، یہاں پہ 3، طول یعنی لمبائی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو 3 دونوں کو ضرب دے دیں گے تو یہاں پر 12 ہو گئے۔ اسی طرح یہاں پہ کیا دیکھیں اپن یہاں پر طول کتنا آیا، یہاں پر 7 ہے، عرض کتنا ہے یہاں پر 5 ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی دیکھیے طول 5 ہے، عرض کتنا ہے 3 ہے، دونوں کو ضرب دے دیے، یہاں پہ 35 آیا، یہاں پر 15 آیا نا یہاں پر اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کس طرح لکھتے، یہاں پر طول ضرب عرض کے طریقے سے لکھنا ہے جو کہ آپ لوگ لکھ لے سکتے۔ یہاں پہ دیکھیں اوپر کی بحث اور نتیجے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستطیل کا رقبہ مساوی ہوتا ہے طول ضرب عرض، یہ آلریڈی اپنے کو معلوم ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہیں پر خالی یہ مستطیل کا رقبہ جو ہوتا طول ضرب عرض ہوتا، اسی کا کانسیپٹ کے لیے یہ ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے وہی ہے، ایک کمرہ ہے، پھر وہی تختے کا معلوم کرنا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں گے مربع کے رقبے میں، اب تک کہاں تھے مستطیل کے رقبے میں تھے نا، کیا ہے بھائی مستطیل کا رقبے کا ضابطہ، اب بھولنا نہیں بار بار ہے نا، کیا ہے مستطیل کے رقبے کا ضابطہ، ریکٹینگل، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کا ضابطہ، کیا ہے طول ضرب عرض، طول ضرب عرض کیا ہے مستطیل کا رقبہ ہے۔ اب مربع کے رقبے میں دیکھیں گے، اب مربع کا رقبہ دیکھیے ایسے میں یہاں دیکھیے 4 سمر ہے، ایک ضلع 4 سمر ہے، ٹھیک ہے، ایسے میں بھی 4 ہے، مربع میں ظاہر سی بات ہے ایسے میں بھی 4 رہتا، ایسے میں بھی 4 رہتا، مطلب اگر ایسے میں 10 رہا تو ایسے میں 10، کیونکہ تمام ضلع مساوی رہتے نا بھائی مربع کے، تو جس طرح مستطیل کو اپن طول ضرب عرض سے ضرب دے رہے، اسی طرح مربع کو بھی سیم دیں گے اپن، 4 ضرب 4 کتنا ہو جاتا 16، تو یہ مربع کا رقبہ کیا ہے 16 ہے، مطلب جو بھی ضلع رہیں گا اس کی دوسری کیا ہو جائے گی مربع کا رقبہ، مطلب یہاں پہ 16 رہا تو 16 کی دوسری، 14 رہا تو 14، 15 رہا تو 15، مطلب جو بھی ضلع رہیں گا اس کی دوسری کیا ہو جائے گی، مطلب ضلع ضرب ضلع کیا ہو جائے گا مربع کا رقبہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ہے دیکھیے 4 ضرب 4 کیا ہو گیا مربع کا رقبہ، اس طرح ایک صف میں 4 مربع اور اس طرح 4 صف ہے، اس طرح مربع کا رقبہ 4 ضرب 4 ہوگا، ٹھیک ہے نا، مستطیل کی طرح، لیکن اس کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے طول اور عرض کیا ہوتے ہیں مساوی ہوتے ہیں، ہے نا، مستطیل کی تمام خوبیاں مربع میں پائی جاتی ہے لیکن کیا ہوتے ہیں اس کے طول اور عرض مساوی ہوتے ہیں، جبکہ مستطیل کے طول اور عرض مساوی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر دیکھیے
चंद मुरब्बों के अज़ला के तूल दिए गए हैं, इनके रकबे मालूम कीजिए। देखो पहला अज़ला क्या है, 4 है, तो 4 की दूसरी मतलब मुरब्बे का रकबा मतलब दूसरी ना 16। अब देखो यहाँ पे 6 दिया गया है ज़िला, 6 की दूसरी कितना हो जाता है, 6 छक्के 36, 2 की दूसरी 4, 8 की दूसरी 8 अट्ठे 64। ठीक है, ऊपर की बहस से पता चलता है कि मुरब्बे का रकबा मसावी होता है ज़िला ज़रब ज़िला। मुरब्बे का रकबा क्या होता है, ज़िला ज़रब ज़िला, यानी उसको ऐसा भी लिखेंगे कि हम ज़िले की दूसरी। ठीक है, इस तरह दोनों नताइज मसावी होते हैं, यानी ऊपर बताए हुए भी ये भी मसावी होते। यहाँ पे एक मिसाल है, देखिए 12 समर और 5 समर इबाद के कितने टाइल्स एक मुस्ततिली कमरे के फर्श के लिए दरकार होंगे, जिसका तूल 144 समर और अर्ज़ कितना है, 100 समर है। तो यहाँ पे देखो ये टाइल्स की, ये जो है टाइल्स कैसा है, अब आप बता सकते भाई, इसकी पैमाइश को देख के बोल सकते हैं कौन सी शक्ल है। ये 12 समर 5 समर मतलब इसका तूल है, ये अर्ज़ है, तो कौन सी शक्ल है यहाँ पर, मुस्ततीली शक्ल के है। क्या है ये टाइल्स, क्या है, मुस्ततीली शक्ल के। तो फर्स्ट तो देखिए कमरे का तूल क्या था यहाँ पर 144 दिया, और अर्ज़ कितना दिया भाई यहाँ पर 100 दिया। अगर इसका रकबा, अब यहाँ पर बोलो मुझे टाइल्स क्या साइडों में लगाते या अंदर लगाते, ज़ाहिर सी बात है अंदर जो खिता रहता घेरा हुआ उस पर लगाते, तो ज़ाहिर सी बात है रकबा मालूम करेंगे। रकबे के लिए क्या है भाई, तूल ज़रब अर्ज़ है, तो ज़ाहिर सी बात है ये तूल है ये अर्ज़ है, दोनों को ज़रब दे दीजिए। अब इसको 100 से ये देते हुए नहीं जाना, जब कभी भी ज़ीरो के नंबर रहेंगे। तो फर्स्ट देखिए ये 1 है ना, तो 144 से कम 144, और जितने सिफर रहेंगे वो लगा देंगे। ये हो गया मुरब्बा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर मुरब्बा। ठीक है, ये कमरे का रकबा है। तो अपने को अब टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का रकबा पहले टाइल का मालूम करेंगे। टाइल का क्या है भाई, ये सेम 12 समर है और 5 समर है। ठीक है ना, सॉरी ये भी समर में है, हाँ सेंटीमीटर है, ओके समर है। तो यहाँ पे देखो 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो यहाँ पर इसमें कितने टाइल्स होते मालूम करना। तो इसको क्या करना, जो कमरे के रकबे से टाइल के रकबे को तकसीम करना। तो ये सिफर क्या होगा, कैंसल हो गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 इधर चले गए, 6 चौक 24, ये सिफर का सिफर। तो कितने टाइल्स होते हैं यहाँ पर, टाइल्स की तादाद कितनी रहती है यहाँ पर, कितनी रहती है यहाँ पर टाइल्स की तादाद, 240 टाइल्स होते। ठीक है, यहाँ पर है देखिए मिसाल, कमरे का तूल ले लिए, कमरे का अर्ज़ ले लिए, दोनों का अहाता मालूम करे, इतना आ गया। टाइल का मालूम करे, देखिए टाइल का रकबा मालूम करे, इतना आ गया। टाइल का रकबा मालूम करे, 60 मुरब्बा समर आ गया। अब देखिए क्या करे, कमरे के रकबे से टाइल के रकबे को तकसीम कर दिए, तो यहाँ पर आपको देखिए कितना आया, 240 टाइल्स आ गए। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिसाल देख लीजिए, 11वीं मिसाल। एक मुस्ततील और मुरब्बा का अहाता मसावी है। एक मुस्ततील और मुरब्बे का अहाता मसावी है। अगर मुस्ततील के तूल और अर्ज़ बिल तरतीब 35 और 24 समर है, तब बताइए कि किसका रकबा ज़्यादा होगा और कितना। तो फर्स्ट देखिए मुस्ततील और क्या कह रहा है, ये मुस्ततील और मुरब्बे का अहाता मसावी। तो मुस्ततील का अहाता क्या है, 2 × L + B। मुरब्बे का अहाता क्या है, 4A। ठीक है ना, ऑलरेडी अपने को मालूम है ना, 4A रकबा है। तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, मुस्ततील के तूल और अर्ज़ दे दिया, देखो क्या दिया, 35 और 25 दे दिया। 35 और 25 दोनों को जमा कर लेंगे ना भाई, 35 और 25 कितने हो गए, ये 5 इधर दे दीजिए, 30 कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, ये 4A एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, 60 दूनी कितना हो गया, 120 हो गया, ये 4A हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये सिफर का सिफर। ए मसावी है, कितना आ गया, 30। ठीक है, 30 समर आ गया। ए मसावी है 30 समर। उसने क्या बताया, अब क्या करना है, दोनों का रकबा मालूम करना है। ठीक है, अहाता दिया था ना, अब अहाते के ज़रिए अपन ए मालूम करें ना, अब दोनों का रकबा मालूम करना। तो फर्स्ट देखिए अपन ए पहले मुरब्बे का मालूम करेंगे। मुरब्बे का ज़िला क्या आया अपने को, 30 आया। तो 30 की दूसरी कितनी होती बोलिए,
30 की दूसरी 3 की दूसरी 9 हो गया, 1 सिफर है तो 2 सिफर, मतलब कितना होगा यहाँ पर मुरब्बा समर। ठीक है, ये मुरब्बे का हो गया। अब उसने क्या कहा, मुस्ततील और मुरब्बे का, अब क्या करना है यहाँ पर अपने को, किसका मालूम करना है, मुस्ततील का। तो मुस्ततील का तूल भी है अर्ज भी है, इजीली मालूम कर सकते ना। 35 ज़रब 25 मालूम कर लीजिए, 25 पंजे 125, 125 के 5 हासिल के 12। ठीक है, 25 दिया 75, 75 में 12 मिला लीजिए। ठीक है, 75 में 12 मिला लेंगे हम, कितने हो जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, 75 में 12 यानी यहाँ पे देख लीजिए 75 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 87। ठीक है ना, 87 हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 87 हो गए ना यहाँ पर। ये देखिए ये किसका होगा, यहाँ पर मुस्ततील का होगा। तब किसका रग़बा ज़्यादा है, किसका रग़बा ज़्यादा है, तो मुरब्बे का रग़बा ज़्यादा है। मुरब्बे का रग़बा क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर वही बता रहा है, देखिए यहाँ पे मुरब्बे का रग़बा मालूम करे और मुस्ततील का मालूम करे। देखिए 875 होगा, जो कि अपने को भी आया 875। उसी तरह देखिए मुरब्बे का मालूम किया गया, अपन भी मालूम करें 900 आया। ज़्यादा किसका है भाई, यहाँ पर इस तरह मुरब्बे का रग़बा मुस्ततील के रग़बे से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 25 समर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 875 है मुस्ततील का, मुरब्बे का 900 है, तो 25 समर ज़्यादा है। उसी तरह ये देखिए 12वीं मिसाल भी है, सेम है। एक मुस्ततील का रग़बा मालूम करना है जिसका तूल 4 मीटर अर्ज़ और 68 समर है। रक़बे को मुरब्बा समर में ज़ाहिर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4 मीटर है और यहाँ पर 68 समर है, तो ये मीटर को आप समर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 मीटर में कितने समर रहते, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए, देखो 400 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज़रब दे देंगे, आपको मुरब्बे का रग़बा आ जाता। उसी तरह मुस्ततील का रग़बा आ जाता। उसी तरह एक मुस्ततीली बाग़ का रग़बा है, इतना है। अगर इसका तूल 40 मीटर हो तो अर्ज़ मालूम करना है। सेम क्या है, यहाँ पर रग़बा दे दिया, कितना है यहाँ पर 1120 है यहाँ पर, मतलब 1120 रग़बा है। तो उसमें क्या है, यहाँ पर अर्ज़ नहीं दिया, तूल दिया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये रग़बा है, ये L इंटू बी ना, तो यहाँ पर L दिया क्या, हाँ दिया। L कितना दिया, 40 दिया। ठीक है, यहाँ पर 40 इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए ये सिफर कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, इधर कितने चले गए, 3 चले गए। ठीक है, 4 अट्ठे 32, तो कितना होगा यहाँ पर जो अर्ज़ है वो कितना है, 32 समर होगा, जो कि यहाँ 28 समर होगा। यहाँ पर 28 समर नहीं, मीटर में दिया, तो लिहाजा 28 मीटर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5 मीटर तूल 4 मीटर अर्ज़ के ज़मीनी खित्ते पर 1 मीटर ज़िले वाले 5 मुरब्बा फूलों की क्यारियों के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। तब माँ बाकी ज़मीनी खित्ते का रग़बा क्या है। तो यहाँ पे आप मिसाल में ही देख लीजिए, इसमें करने का कुछ नहीं है। यहाँ पे ज़मीनी खित्ते का रग़बा क्या है, हो जाता तूल ज़रब अर्ज़ हो जाता। तो तूल कितना है, ऑलरेडी 5 है, अर्ज़ कितना है 4 है, दोनों को मालूम करे तो यहाँ पर 20 मुरब्बा मीटर इसका रग़बा होगा। फूलों का कितना है, 1 है, 1 ज़रब 1 यानी 1 मुरब्बा, यानी 5 में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 5 मुरब्बा मीटर हो जाता। अगर 5 क्यारियों के लिए 5 मुरब्बा मीटर हो जाता, तो इसमें से 20 में से 5 मुरब्बा मीटर में से 5 निकाल देंगे तो कितना रहता, माँ बाकी 15 मुरब्बा मीटर माँ बाकी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए आपका मश्क नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मंदरजा झेल में मुस्ततील के बाद दिए गए हैं, इनके रक़बे मालूम करना। आप लोग कर लेते भाई, रक़बा मुस्ततील का रक़बा क्या है, तूल ज़रब अर्ज़। यहाँ पे तूल भी है अर्ज़ भी है, दोनों को ज़रब दीजिएगा, आपको जवाब आ जाता। ये फर्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही करना। दूसरा देख लीजिए, मंदरजा झेल में मुरब्बे का ज़िला दे दिया। मुरब्बे का ज़िला मतलब मालूम है ना, एक मुरब्बे का रक़बे का ज़ाब्ता क्या है, A² या ज़िले की दूसरी। तो यहाँ पे ज़िला है, इसकी दूसरी कर दिए। दूसरी मतलब मालूम ना, ये अदद को यही अदद से ज़रब देना, 17 की दूसरी।
मतलब 17 दूनी 34 नहीं, अब यहाँ 8 है, 8 की दूसरी मतलब यहाँ पे 16 नहीं, 8 को 8 से ज़रब देना, 8 अट्ठे 64, इस तरह इसको ज़रब देंगे, आपको है ना मुरब्बे का रकबा मालूम हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक मुस्ततिली फ्रेम का रकबा इतना है, मुरब्बा समर है, अगर इसका अर्ज़ 25 समर हो तो तूल मालूम करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या करना, आप फार्मूले में अहाते की प्लेस पे ये रखना, अर्ज़ की जगह 25 रखना, एल नहीं मालूम है तो एल को एज इट इज़ रखना। अब आप लोग कर ले सकते ये इजीली, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बोल रहे क्योंकि ये वीडियो में इंशाल्लाह ये लेसन कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है। एक मुस्ततिल खेत का तूल क्या है, 60 मीटर है और इसका अर्ज़ तूल का निस्फ हो, तो अब यहाँ पे देखो निस्फ मतलब क्या, आधा, निस्फ किसे कहेंगे, आधे को कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मुस्ततिली खेत का तूल मतलब एल कितना है, यहाँ पे 60 मीटर है और इसका अर्ज़ जो है ना वो क्या है, तूल का निस्फ है, मतलब तूल कितना था, 60 था, तो उसका निस्फ यानी 30 है, तो इसका रकबा मालूम करना। तो दोनों को दे दीजिए भाई ज़रब, 3 छक्के 18, ठीक है, ये 2 सिफर का 2 सिफर, ये हो गया अपने को रकबा। जो कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक मुरब्बे कागज़ का अहाता 4 समर है, अहाता दे दिया ऑलरेडी उन्हें, अहाता 4 समर है, तब इसका ज़िले की लंबाई क्या होगी और इसका रकबा क्या होगा। ज़िले की लंबाई भी पूछ रहा है वो और उसका रकबा भी पूछ रहा है। तो पहले तो देखिए मुरब्बी कागज़ का जो अहाता है, अहाता कितना दिया, वो अहाता 40 दिया। अहाता के लिए मुरब्बी कागज़ का अहाता मतलब मुरब्बे का अहाता क्या है, 4 a = 40 दे दिया, मतलब 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, तो a = 10 आया। तो यहाँ पे ए तो मालूम होगा, लंबाई तो मालूम होगी, अब क्या मालूम करना है, इसका रकबा मतलब a स्क्वायर क्या हो जाता, 10 स्क्वायर क्या हो जाता, 100 हो जाता। ओके डन। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन देखिए, एक मुस्ततिली प्लाट का रकबा कितना है, 2400 मुरब्बा मीटर है, अगर इसका तूल इसके अर्ज़ से 1/2 गुना है, 1/2 गुना मतलब कितना, 1.5 गुना है, तब इसका अहाता क्या होगा। तब यहाँ पे देख लीजिए, ये भी इजी है, कर ले सकते, फिर भी मैं यहाँ पर ये गुना वगैरह आ रहा तो इसीलिए मैं बता रहे। यहाँ पे देखो मुस्ततिली प्लाट है, उसका रकबा क्या है, मुस्ततिल का रकबा तो ऑलरेडी मालूम है ना, L × B, कितना दे दिया, L × B कितना दिया, 2400 दे दिया। ओके, इसका तूल क्या दिया भाई, इसका तूल इसके अर्ज़ से इतना गुना है, तो अर्ज़ मालूम है क्या, नहीं है, x ले लिए, कितना गुना है, 1/2, तो इसको क्या करना, ये देखिए मुरक्कब कसर है तो इसको वाजिब कसर में लाइए, 2 1 कम 2, 2 में 1 जमा करिए 3, 3/2, तो यहाँ पे 3/2 गुना मतलब x गुना बता रहा ना, तो इसको x ये कर इतना है। तो यहाँ पे देखिए ये 2400, ये इधर तकसीम कर रहा, 2 इधर आके क्या करता, ज़रब देता, और x ज़रब x क्या होगा, x की दूसरी, ठीक है, 3x की दूसरी, 3 1 कम 3। अब यहाँ पे देखिए 3 1 कम 3, 3 अट्ठे 24, ये सिफर के सिफर, 8 दूनी 16, ये 2 सिफर के सिफर। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ये इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बन जाता, जज़र बन जाता। 16 का जज़र क्या निकलता, 4 निकलता, 2 सिफर का जज़र 1 सिफर, तो यहाँ x की कीमत क्या आई आपको, 40 आई। तो मालूम क्या करना था आपको, उसका अहाता मालूम करना है, किसका, मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है। तो आपके पास देखिए तूल भी आ गया, अर्ज़ भी आ गया, तो यहाँ पे जो अर्ज़ है वो कितना है, 40 है, और तूल क्या है देखिए 3 × 40 / 2, ये कहाँ से आया, यहाँ पर, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 20 क्या हो गए, 40, ये 40 होगा, ये देखिए 60 होगा। ये तूल और अर्ज़ मालूम हो गए। अब इसका अहाता मालूम करेंगे, इजीली कर ले सकते ना भाई, ये 100 हो गया, दोनों को जमा करें 100 हो गया, फिर इनको ज़रब दे दिए 200, तो अहाता क्या हो जाता है इसका, 200 हो जाता। आप लोग कर लीजिए, आ जाता आपको इसका जवाब। नेक्स्ट देखिए, एक कमरे के तूल और अर्ज़ तरतीब वार कितना है, 6 मीटर और 4 मीटर है, तो कितने मुरब्बा मीटर के खालीन इस कमरे के फ़र्श को मुकम्मल तौर पर घेर सकती है। अगर खालीन की कीमत फ़ी मुरब्बा मीटर 240 रुपये हो तो कमरे को मुकम्मल तौर पर पुर करने वाली खालीन कुल की कीमत क्या होगी। तो पहले तो देखो यहाँ पर तूल अर्ज़ दे दिया, तो इनका रकबा मालूम कर लीजिए, कितना हो जाता, 4 6 के 24,
24 मुरब्बा मीटर है। तो एक के लिए कितना है 240 रुपये है। तो 24 को कितने होते, तो इससे 24 से इसको ज़रब देंगे तो जो भी आ जाता है वो अपनी कीमत रहती। नेक्स्ट देखिए, दो खेत के अहाते मसावी है। दो खेत है उसका अहाता क्या है, मसावी है। एक खेत क्या है, एक मुरब्बी खेत जिसका ज़िला क्या है 72 मीटर है, और दूसरा कौन सा है, मुस्ततिली खेत है जिसका तूल क्या है 80 मीटर है। किस खेत का रकबा ज़्यादा होगा बताना है। तो देखो, पहले तो फर्स्ट अपने को एक पॉइंट दे दिया उन्हें, वो पॉइंट को लेके चलना है। क्या बोला कि जो दोनों के अहाते जो है, दोनों के अहाते क्या है, मसावी है। तो एक क्या है भाई, मुरब्बी खेत है। मुरब्बी खेत का मतलब 4A हो गया। दूसरा क्या है, मुस्ततिली खेत है, मतलब इसका 2 × L + B हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मुरब्बी खेत है उसका ज़िला कितना है 72, मतलब 4 × 72, और मुस्ततिली खेत का तुल कितना है, मतलब ये L कितना है 80 है, प्लस ये B नहीं दिया, ठीक है। B अपने को B नहीं है, B मालूम करना, फिर उसके बाद उसका रकबा मालूम करना, और कितना ज़्यादा है कितना कम है वो भी मालूम करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया। उसके बाद ये B एज इट इज़ ले लेंगे, या C इधर आके माइनस करता। यहाँ पर देखिए ये 4, और यहाँ पर देखिए 14 में से 8 गए तो कितने हो गए यहाँ पर 6, ठीक है। तो B कितना आ गया यहाँ पर 64 आ गया। अब मालूम क्या करना है अपने को, यहाँ पर खेत का रकबा मालूम करना है और कितना ज़्यादा है मालूम करना है। तो पहले खेत का रकबा किसका मालूम करेंगे, मुस्ततिल का करेंगे। मुस्ततिल का क्या हो जाएगा, अपने को 64 आया, पहले तूल कितना दिया था 80 दिया था। तो देखिए 8 × 6 = 48, सॉरी 8 × 4 = 32, 32 का 2 हासिल के 3, 8 × 6 = 48, 49, 50, 51, ये 51, ये सिफर का सिफर, ये मुस्ततिल का रकबा होगा। अब मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। तो मुरब्बे का रकबा कैसा मालूम करेंगे, आपको यहाँ पर ज़िला कितना है 72 है, तो 72 की दूसरी करेंगे आपको, तो मुरब्बे का रकबा मालूम होता। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 14 के 4 हासिल का 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, क्या होगा 4, 8, 1, 5। यहाँ पर देखिए ये 51, ठीक है, 5120 आया, ये 5184 आया। तो किसका रकबा ज़्यादा है, मुरब्बे का रकबा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है पूछ रहा उन्हें, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये 4 और ये 6, कितना ज़्यादा है 64 ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, देख लीजिए। एक मुरब्बे का रकबा 49, ठीक है, क्या कहेंगे 49 मुरब्बा समर है। एक मुस्ततिल का अहाता मुरब्बे के अहाते के मसावी है। अगर मुस्ततिल का अहाता का तूल जो रहेगा वो 9.3 समर है, तब इसका अर्ज़ मालूम कीजिए। और मज़ीद क्या मालूम करना है, उसका रकबा भी मालूम करना है। आप लोग ये आसानी से कर सकते। उसी तरह राशिद के खेत का मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है, ये भी आप लोग कर सकते। उसके बाद देखिए मुस्ततिली फ़र्श का तूल और अर्ज़ का रकबा मालूम करना है, ये भी कर सकते, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 13वां क्वेश्चन भी है, इसमें भी ख़र्च कितना होता मालूम करना है। और घास उगाना के लिए, मतलब घास कहाँ उगाते भाई, रकबे पे ही उगाते ना, मालूम करना है। उसके बाद 14 है, देखिए मुस्ततिल के रकबे में क्या तब्दीली, इसके तूल और अर्ज़ को दुगना करे तो मुस्ततिल में क्या तब्दीली आती, ये ठीक है। फिर यहाँ पर इसके तूल को दुगना और अर्ज़ को 3 गुना करे तो क्या तब्दीली आती। और बताइए कि मुरब्बे के रकबे में क्या तब्दीली वाक़ होगी अगर इसके ज़िले को दुगना किया जाए, निस्फ़ किया जाए। आधा करे तो क्या हो जाता वो, और मज़ीद आधा करे तो क्या हो जाता वो, मज़ीद और आधा हो जाता। दुगना करे तो क्या हो जाता वो 4 गुना हो जाता, ठीक है। और इसके तूल और अर्ज़ को दुगना किया जाए तो क्या हो जाता, सपोज़ यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 था, इसको दुगना कर दिए, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। तो कितना यहाँ पे 2 1 कम 2 था, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 होगा, मतलब कितना बढ़ता, 4 दुगना करे तो वो 4 गुना बढ़ जाता। अगर 3 गुना करे तो वो क्या हो जाता, सपोज़ यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, नहीं सॉरी यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 था। अब इसको 3 गुना करें, मतलब यहाँ पर 2 तिया
6 کر دیے، 6 دیا 18 کر دیے، مطلب 3 گنا، ٹھیک ہے، 3 گنا اگر بڑھا دیں گے تو اس میں مزید اور 3 گنا کا اضافہ ہوگا۔ یہ تھا دیکھیے آپ کا لیسن۔ اور یہاں پہ جو سوالات ہیں، اگر آپ کو اس میں سے کوئی مشکل ہو تو آپ لوگ ہیں نا ٹیلی گرام پہ وہ کوشچن ڈالیے، انشاءاللہ میں آپ کو آسان طریقے سے کرنے کا طریقہ بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا سیکھا ہمیں دیکھ لیجئے۔ احاطہ کسے بولتے ہیں؟ دراصل بند شکل کے کناروں کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ شکل کے اطراف ایک چکر کے مماثل ہوتا ہے۔ مستطیل کا احاطہ کیا ہے؟ 2 × l+b، یعنی طول 2 ضرب طول جمع عرض۔ اور مربع کا احاطہ کیا ہے؟ 4 ضلع کا طول، ٹھیک ہے، 4a۔ اور مساوی الاضلاع کا مثلث کا احاطہ کیا ہے؟ 3 × a، مطلب یہاں پہ جو سائڈ رہتا ضلع کا طول۔ نیکسٹ دیکھیے، وہ بند اشکال جن کے تمام ضلع مساوی اور ان کے تمام زاویوں کی پیمائش مساوی ہوتی ہے، منظم کثیر ضلعی، ٹھیک ہے، منظم کثیر ضلعی ریگولر فگرز کہلاتے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے دیکھیے، منظم بند اشکال کا احاطہ مساوی ہوتا ہے اس کے ضلعوں کے جملہ تعداد اور ضلع کے حاصل ضرب کے۔ دیکھیں نا بھائی، اس کے ضلع کی تعداد اور اس کا حاصل ضرب کے مساوات۔ ایک بند شکل سے گھرے خطے کی مقدار رقبہ کہلاتی ہے، یہ بھی آپ نے کو معلوم ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کرنے کے لیے ایک مربع ترسیمی کاغذ کا استعمال کرتے وقت ان نکات کو خیال میں رکھنا ہے۔ کیسا رکھنا؟ آلریڈی اپن دیکھے، جو آدھے سے کم ہو انہیں نظر انداز کرنا، جو آدھے کے زائد ہو ان کو 1 مان لینا، اور جو حقیقتاً میں آدھے رہتے ان کو آدھے ہی مانتے۔ نیکسٹ ہے دیکھیے، ایک مکمل مربع کو مکمل مربع ہی مان لینا، ٹھیک ہے نا۔ مستطیل کا رقبہ کیا ہے؟ طول ضرب عرض۔ مربع کا رقبہ کیا ہے؟ ضلع ضرب ضلع۔ یہاں پہ دیکھیے، مربع کا رقبہ کسی بھی مستطیل کے رقبے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ دونوں کے احاطے مساوی۔ یہ پوائنٹ اچھے سے یاد رکھ لیجئے، مربع کا رقبہ مستطیل کے رقبے سے زیادہ ہوتا ہے جبکہ ان کے احاطے مساوی ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیے، اگر ان کے احاطے کیا ہے؟ مساوی ہے، تب احاطے مساوی، احاطہ مطلب یہ والا جو معلوم ہے نا، جو ان کی باؤنڈری معلوم، یہ دونوں کا مساوی ہے احاطہ، تب رقبہ کس کا زیادہ رہتا؟ مربع کا زیادہ رہتا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو بھی نہیں سمجھ میں آیا، جو سوالات ہے یہ لیسن میں آپ کو حل نہیں کر پا رہے ہو، تو ایسے سوالات کو آپ ٹیلی گرام پر کیا ہے شیئر کیجئے گا، میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ کی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور سیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔